اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو، اس پر ایمان بھی لاؤ، اس کی مدد بھی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو پوجو، پوجنے کی بات تو نہیں کی، مگر مدد کرنے کی بات کر دی کہ اس کی مدد کرو۔ اور ایک پیغمبر، ایک اولو العزم رسول کی زبان سے یہ فقرہ نکلا، قرآن اس کی حفاظت فرما رہا، من انصاری اللہ، من انصاری اللہ، کون ہے ہمارا مددگار؟ یہ خدا کو نہیں بلا رہے، یہ غیر خدا سے بات کر رہے ہیں، جو غیر خدا مخاطب ہے۔ اور وہ حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں، حواریین بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی مخاطب ہیں، تو انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار، ہم ہیں خدا کے دین کے مددگار۔ ارے یہاں سے بات اور آگے بڑھتی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس لفظ کو ایسی جگہ استعمال کیا کہ سمجھنا مشکل ہو جائے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اگر خدا کی مدد کرو گے خدا تمہاری مدد کرے گا، تم خدا کی مدد کرو گے تو خدا نے اپنے دین کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا، اپنے حبیب کی مدد کو اپنی مدد قرار دیا۔ یہ مدد کا معاملہ کیا ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں صالحین مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، انبیاء بھی دوسرے مددگار کو آواز دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن میں دوسرے کے مدد کے لیے احکامات بھی موجود ہیں۔ اور یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی مدد، تیری ہی عبادت اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ فرق کیا ہے؟ دیکھیے جناب، مدد استعانت، مدد حاصل کرنا اور عبادت، اس کی نوعیت الگ الگ۔ عبادت دو کی ہی نہیں جا سکتی، عبادت کی ایک ہی قسم ہے، چھوٹی بڑی عبادت تقسیم نہیں، یہ چھوٹی عبادت یہ بڑی عبادت، عبادت کی ایک ہی قسم ہے، دو کی عبادت کی ہی نہیں جاتی۔ اور مدد کے سینکڑوں قسمیں، چھوٹی مدد بھی ہوتی ہے، بڑی مدد بھی ہوتی ہے، ظاہری مدد بھی ہوتی ہے، باطنی مدد بھی ہوتی ہے۔ مدد کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، عبادت کی ایک قسم۔ کیوں عبادت کہتے کسے؟ اقصی غایت الخضوع، فروتنی، خاکساری، عاجزی کی جو انتہا ہے وہ عبادت بنتی ہے۔ جو انتہا ہے عاجزی، انکساری، خاکساری کی انتہا، وہ کیا ہے؟ وہ عبادت۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انتہا کسی چیز کی دو نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے ہاتھ میں آپ چھری دیکھ رہے ہیں، اس کی ابتدا بھی ایک ہے، اس کی انتہا بھی ہے۔ وہ نقطہ جو انتہا، اس کے بعد کوئی نقطہ نہیں، اور جو ابتدا ہے اس سے پہلے کوئی نہیں۔ تو نہ ابتدا سے پہلے کچھ ہوتا ہے، نہ انتہا کے بعد کچھ ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی ابتدا بھی ایک ہوتی ہے، انتہا بھی ایک ہوتی ہے، ابتدا بھی ایک ہوتی ہے، انتہا بھی ایک ہوتی ہے۔ ابتدا انتہا کی تفسیر نہیں ہوتی تو جب خاکساری کی انتہا کا نام عبادت ہے تو یہ اسی ذات کے لیے ہے جو کمال کی انتہا ہو، جس کے اوپر کمال کا کوئی تصور نہ کیا جا سکے، تو یہ اسی ذات کے لیے ہے۔ مگر دوستو مدد کا معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ مدد کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کرتا ہے کہ اس کے درجات ہیں، اس کے درجات ہیں۔ جب درجات ہیں تو ایک ایسی مدد مانگنا، کسی کو معبود سمجھ کے مانگنا مدد، یہ تو ضرور جرم قرار پائے گا، مگر اس کے سوا ہٹ کر کے اگر آپ مدد مانگتے ہیں تو نہ یہ قرآنی ہدایات کے خلاف ہے، نہ رسول کے ارشادات کے خلاف ہے، بلکہ قرآنی ہدایت کے مطابق۔ میں اس کو اور بھی وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں، اور واقعی وہی مفہوم اگر دیکھیں تو بات وہی ہے کہ ہم جس سے بھی مدد مانگتے ہیں یہ خدا ہی سے مدد مانگنا ہے۔ جس سے بھی مدد مانگتے ہیں جو خدا کے مدد کے مظاہر ہیں، ان سے جو مدد مانگیں گے یہ خدا ہی کی مدد ہوگی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا میں آپ کا وقت لوں گا، ذرا سا آپ خیال کریں۔ کسی بھی حکومت کہ آپ شعبے دیکھیں، کتنے شعبے ہوتے ہیں؟ کوئی بھی حکومت تو میں اپنے انڈیا کے حساب سے بات آپ کے سامنے کروں گا
चंद शोबे, ये हुकूमत के शोबे। एक को कहते हैं मुकन्नना, जहां कानून बनता, जैसे पार्लियामेंट, और एक शोबा है जिसको कहते हैं आदलिया, जहां कानून नाफिज किया जाता, कोर्ट कचहरी। और एक शोबा ऐसा है जिसको हम कहते हैं इंतजामिया, जहां कानून की हिफाजत करने वाले होते हैं। जैसे कि आप वो महकमा जिसके अफराद एसपी, डीवाईएसपी, डीआईजी, आईजी वगैरह होते हैं, और एक महकमा होता है दिफाइया, ये मिलिट्री वाले होते हैं जिनका काम होता है मुल्क की हिफाजत। ये सारे हुकूमत के महकमे। अच्छा, या इस महकमे की कुर्सी पर कोई अपनी मर्जी से नहीं बैठता, जिसके महकमे है वो बिठाता, जिसको लायक समझता, जिसको लायक समझता है। तो सबकी जिम्मेदारी अलग अलग। अब हम अपनी हुकूमत में रहकर अगर अपनी मिलिट्री से मदद ले तो ये हुकूमत के गैर की मदद नहीं। अगर हम अपने इंतजामिया से मदद लें, हम अपनी हुकूमत के बाद ही नहीं कह रहे, इसलिए कि हुकूमत ने इन महकमों को इसीलिए बनाया ही है। हम अपनी कचहरी से मदद लें, ये गैर की मदद नहीं। देखने में तो ये जज साहब जो हैं, अब्दुल रहमान साहब जज बने बैठे हुए हैं, और जब ये फैसला करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि ये अब्दुल रहमान का फैसला है, ये गवर्नमेंट का फैसला है। जज की कुर्सी पर बैठ करके फैसला करने वाला फैसला करे तो कहेंगे गवर्नमेंट का फैसला है। कोई मिलिट्री अगर किसी पर जुल्म करे तो इसे गवर्नमेंट का जुल्म कहेंगे, और अगर किसी की मदद करे तो ये गवर्नमेंट की मदद कही जाएगी। ये मत देखो कि कौन लिख रहा है, ये देखो किस कुर्सी पे बैठ के लिख रहा है, किस मनसब पर बैठ के लिख रहा है। तो ये मनसब वाले जो है, इनसे मदद अगर हम मांगते हैं तो फिर हम गैर से मदद नहीं मांगते। रहे हिंदुस्तान में और मदद मांगे अमेरिका से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे चीन से, रहे हिंदुस्तान में मदद मांगे जापान से। अब ये गैर की बात आ गई, अब ये गैर की बात आ गई। गैर से मदद मांगना और है तो गैर किसे कहते हैं? गैर, गैर का लफ्ज़ समझो, जो अपना नहीं वो गैर, और जो अपना वो गैर कहां से? जो अपना वो गैर कहां से? अभी तक आप समझ ही नहीं सके कि खुदा का गैर कौन, खुदा का गैर कौन। मैं सोचता हूँ कि अगर अंबिया औलिया खुदा के गैर हो गए तो खुदा का अपना कौन हो? खुदा का अपना कौन? तो किसी भी महकमे से आपने अगर मदद मांगी तो ये असल में गवर्नमेंट ही की मदद है। तो अब हम ये खुदा की बारगाह में अर्ज करते हैं, आया खुदा, हम तेरे सिवा किसी से मदद नहीं मांगते, उसी के पास जाते हैं जिसे तूने मदद के लिए बनाया है, जिसने मनसब में मिलाया है। हम कहीं गैर नहीं जाते, हम वही जाते हैं जिसका फैसला तेरा फैसला हो, जिसकी मदद तेरी मदद हो, जिसकी नुसरत तेरी नुसरत हो। याद रखो दोस्तों, जैसे वो जज का फैसला वो अब्दुल रहमान का फैसला नहीं है, वो गवर्नमेंट का फैसला है, तो मसरते गौसियत पर बैठने वाले शेख अब्दुल कादिर का फैसला ये खुदाई फैसला है, ये खुदाई फैसला है, उनकी मदद ये खुदा की मदद है। तो जब ये बात हो गई तो हम इस बात के कहने में बिल्कुल सच्चे हैं कि हे अल्लाह, हम किसी से मदद मांगते हैं, गैरों के पास नहीं जाते, शैतानों के पास नहीं जाते, खुदों के पास नहीं जाते, तेरे दुश्मनों के पास नहीं जाते, बल्कि उनके पास जाते जो तेरे अपने जिस मनसब पर तूने उन्हें बिठाया है हमारी मदद के लिए, तो हम उन्हीं के पास जाते हैं। और हमारा ये कहना बिल्कुल सही हो गया, खुदा हम
तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। इसका दूसरा रुख एक ये भी आप ले सकते हैं, मुख्तसर सा रुख ले सकते हैं, इय्याका नअबुदु, ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा हम क्या, हमारी इबादत क्या, हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारा किरदार क्या, हम क्या, हमारी इताअत क्या। इबादत तो हम तेरी ही करते हैं, मगर इस इबादत को तेरी जात के लायक बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं, हम तुझी से मदद मांगते हैं। अगर तू काबिल कबूल बना ले तो काबिल कबूल है, हम क्या, हमारा अमल क्या, हम क्या, हमारी इबादत क्या। तो इस इबादत को काबिल कबूल बनाने के लिए हम तुझी से मदद मांगते हैं। इय्याका नस्तईन, इय्याका नस्तईन। और इसका और भी अगर तेजी से आप दूसरा पहलू लेना चाहें तो देखिए, उलमा से आप पूछेंगे और वो बात भी बड़ी करीने कयास है। ये नस्तईन का लफ्ज़ है, ये आयन से भी बना है, औन से भी बना है। औन के माना आयत के होते हैं, आयन के माना ज़ात के होते हैं, और के माना मदद के होते हैं, और आयन से, और आयन के माना ज़ात के होते हैं। अब कहने वाला बड़ी तेजी से बात आए खुदाबंदी में अर्ज करता है, और सेगा जब बनाएंगे, चाहे वो औन से लीजिए चाहे ऐन से लीजिए, कहेंगे नस्तईन, इय्याका नस्तईन नहीं कहेंगे, कोई दूसरी बात नहीं कहेंगे। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि ऐ खुदा हम तेरी ही इबादत करते हैं, मगर ऐ खुदा इस इबादत के सिले में हम जन्नत नहीं चाहते, जहन्नुम की रिहाई नहीं चाहते, दीन दुनिया की कोई नेमत नहीं चाहते, बल्कि इस इबादत के बदले में हम तेरी जात के दायरे में, हम तेरी जात, तेरी रज़ा चाहते हैं, हम तेरी रज़ा, हम तेरे आयन के तालिब हैं, आयन के तालिब हैं, हम तेरी जात। और ये भी कितनी कमहिम्मती की बात है कि खुदा को पूजो और जन्नत के लिए, कितनी कमहिम्मती की बात है, खुदा को पूजो और जहन्नुम की रिहाई के लिए। अरे जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो, जिसे पूजना है उसको उसी के लिए पूजो। और फिर वो फिक्रा तुम्हारी भी जुबान से निकल जाए जो सैयदना अली मुर्तज़ा की जुबान से निकल चुका था, क्या मा अबदतुका कमान फी जन्नतिका वला खौफुम मिन नारिका वलाकिन वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतुका। ऐ खुदा हमने तेरे जन्नत के लिए तुझे नहीं पूजा, तेरे जहन्नम के खौफ से हमने तुझे नहीं पूजा, हमने तुझे इबादत के लायक पाया, इसलिए पूजा, तुझे इबादत के लायक पाया, इसलिए एक बात बताओ, अगर जन्नत और जहन्नम न होते तो क्या खुदा इबादत के लायक नहीं था? क्या जन्नत और जहन्नम की जैसे हो? बाकी इबादत का राज तो उन्हीं ने समझा दी, ये बोल रहे हैं इबादत इसलिए नहीं है कि हमें जन्नत चाहिए, इबादत इसलिए है कि हमें खुदा की रज़ा चाहिए, खुदा की ज़ात चाहिए। और दोस्तों, नेमत चाहने वाले जो भी नेमत चाहेंगे उसका दायरा कितना वसी हो सकता है? किसी भी बादशाह के खजाने से आप कोई नेमत चाहेंगे, आपने दीनार चाहा दिरहम से महरूम हो गए, दिरहम चाहा दीनार से महरूम हो गए, सोना चाहा तो चांदी से महरूम हो गए, चांदी चाहा तो सोने से महरूम, क्यों हीरा चाहा तो याकूत से महरूम हो गए। खजाने में तो हर तरह का माल है, जहां तक आप ले सकेंगे उतने ही तो लेंगे। मगर अगर बादशाही को ले लिया, अगर राजा को शहंशाही को ले लिया तो पूरा खजाना आपका हो गया, पूरा खजाना आपका हो गया। तो दोस्तों, दुनिया की नेमतों की तरफ दौड़ने वाले दौड़ते रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते